Now today we talk about cross rate. See, basically sometimes what happens, there are rates being given to you. You go to a bank and you ask, "Bhai, what is the rate for dollars?" So generally bank will quote the rates for dollars. That is very simple. Suppose bank quotes you that the rate of dollar is, say, just take up the pen. अभी मालूम है करंट रेट डॉलर का क्या चल रहा है? किसी को? Any idea? Sir, 73. Around 73, yes. But you should be ready to check, just like you check the stock prices. Always try to check the dollars and foreign currency के जो commonly traded currencies होती है, उनके रेट पता रहने चाहिए. Let us assume that the rate for dollars is 73.5329 dash. If somebody tells you 539, इसको आउटराइट वे में आपको लिखना आता है, लास्ट टाइम बताया था, right? Say this is the rate for rupees per dollar, right? Now suppose you go to another bank and there the rate for Canadian dollars per US dollar is given to you, right? And the rate is being given to you just like say 1.5340-798. Now these are the rates which have been given to you when you talk about rupee and dollar, Canadian dollar and dollar. Now some Indian who is involved in trading with Canada. So एक इंडियन है जो कि कनाडा के साथ, कैनेडियन लोगों के साथ ट्रेड करता है. Sometimes he imports, sometimes he exports. He goes to a bank and he says, "Sir, I want a rate for rupees per Canadian dollar." बैंक कहता है, जी हम लोग के पास ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि हम लोग इतना रिजर्व नहीं रखते कैनेडियन डॉलर्स के साथ, तो हम लोग क्या, जब भी आप आओगे तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी. सबसे पहले आपको रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डॉलर को कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ऐसा इसलिए है कि रुपी और डॉलर इजीली आपको रेट अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और यूएसए के साथ ट्रेड बड़ा ज्यादा होता रहता है, आसान है. और उसी तरीके से कनाडा और यूएस का ट्रेड भी बहुत आसान है. तो ये रेट आपको मिल जाएगा और ये रेट आपको मिल जाएगा. आपको ये वाला जो रेट है ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो ज्यादातर कैनेडियन डॉलर के साथ रिजर्व नहीं रखते हैं. सो दे कांट गिव यू डायरेक्टली द रेट. सो इफ यू रियली वांट टू टेक द रेट, you have to do a small exercise. First, if you want Canadian dollar, you have to give us rupees and buy the dollars. This would be the strategy. And then you give us dollar and then we will give you Canadian dollar. बैंक के बड़े मजे हो गए इसके अंदर. क्यों मजे हो गए? सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग कौन हो? Remember, who are you? So everybody doing this आप लोग कौन हो? सर बैंक. Very good. क्या करने बैठे हो? पैसा कमाना. Very good. So every time bank is enjoying the strategy here. Bank asks you to first purchase the dollar and then the customer will purchase the dollar. You will enjoy the game here. Then the customer will again come to you, सर ये डॉलर ले लिए, मेरे को आप कैनेडियन डॉलर दे दो. तो फिर से आप यहाँ पे एंजॉय करोगे. और अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्टर क्या करेगा? एक्सपोर्टर ये करेगा कि साहब मेरे पास कैनेडियन डॉलर आ गए, आई हैव अनवांटेड लॉन्ग पोजीशन इन कैनेडियन डॉलर. डू यू रिमेंबर व्हाट आई सेड? अनवांटेड लॉन्ग पोजीशन. ये वाली स्ट्रेटेजी याद है? आपने डेरिवेटिव पढ़ा है? तो डेरिवेटिव में आपने पढ़ा होगा कि लॉन्ग पोजीशन क्या होती है. डेरिवेटिव के अंदर हम बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन मींस यू हैव बीन बाइंग दैट पर्टिकुलर करेंसी, या यू हैव दैट एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर करेंसी. तो एक एक्सपोर्टर कौन होगा? एक एक्सपोर्टर वो व्यक्ति होगा जिसने अपना सामान कनाडा में बेचा होगा. और जब वो कनाडा में सामान बेचेगा तो ऑटोमेटिकली व्हाट ही इज गोइंग टू गेट, he will be going to get the Canadian dollar.
So this person will get the Canadian dollar. बैंक के पास जाएगा, साहब मुझे रुपीस चाहिए, तो फिर से बैंक क्या बोलेगा कि आप कैनेडियन डॉलर लेके आइए साहब, पहले आपको उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड वंस यू कन्वर्ट इट इनटू डॉलर्स, you again bring dollars to us and we will convert it into rupees. So there are two types of people, those who are interested in dealing into Canadian dollar and rupees. One would be the importer, second would be the exporter, right? Exporter strategy number 2 follow karega और importer strategy number 1 follow करेगा. और हम लोग बीच की जो करेंसी को यूज करेंगे अपने करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए कैनेडियन डॉलर में, या कैनेडियन डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए जिस करेंसी का हम सहारा लेंगे वो करेंसी होगी डॉलर. So whenever there is a situation like when we don't have direct relationship being given by the bank, what does bank do? Bank uses some third currency in between to get the rates for the currency which we want. तो बैंक जब आपको कैनेडियन डॉलर का रेट देने के लिए बोलती है कि डॉलर का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग ने अभी देखा, तो ये डॉलर को हम बोलेंगे व्हीकल करेंसी. It's just like I'm going to Canada via a plane, right? And this plane which is carrying me is called as vehicle. So just like what we are doing is, if I want a rate in between or relationship between in rupees and Canadian dollars, since there are no direct rate being given, what I have to do is first I have to use dollars, and again dollar would be used to convert it to Canadian dollar, just like step number 1 or step number 2, depending on if you are importer or you are an exporter. आप importer हो तो आप step number 1 को follow करोगे, और आप exporter हो तो आप step number 2 को follow करोगे. I hope this is clear to you all. Right? Yes, sir. चलिए. Now what we do is, this is a step or a small exercise for you. First, assume that you all are importers and now you are going to a bank for converting rupees into Canadian dollar. आप सब importer हो, या आपके पास एक importer आया, आप सब तो बैंक हो, आपके पास एक importer आया है, right? क्यों ना हम लोग importer के लिए रेट निकालें सबसे पहले. So this would be your first exercise today, that you all are importer. You have to see that whenever a customer comes to you for converting rupees into Canadian dollar, what you're going to do with him. I'll tell you the steps, then you try to do it. You will ask him that bring the rupees, since you are an importer, आपने विदेश से कनाडा से सामान मंगाया है, आपको उसको कैनेडियन डॉलर पे करना है, तो सबसे पहले आप रुपीस दीजिए, उसको डॉलर में कन्वर्ट करिए, और फिर डॉलर दीजिए, उसको कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट कर दीजिए. So what you need to do now is you have to do these 2 steps. तो ये दोनों चीजें आप करिए और करके मुझे बताइए क्या रेट हो रहा है. सही है? ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग इन रेट्स को आउटराइट फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है? तो सबसे पहले आउटराइट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जो लोग नहीं थे लास्ट टाइम पे वो देख लीजिए. Whenever the rates are been given to you in this format, ये मेरे को आप बता देना क्या है, तो मैं इसको वापस से लिख लेता हूँ, अभी मिटा देता हूँ इसको ताकि आप लोग के लिए आसानी रहे. So whenever the rates are been given in this format, you have to write in outright form. पूरा मिटा देते हैं. पहले आपके पास रेट दिया हुआ रुपी और डॉलर का. क्या रेट दिया है, कोई बताएगा मुझे फिर से? बोलिए. 73.5329. 73.5329 dash 539. 73.5539. 73.55. आखिरी से 3 डिजिट से नंबर हटाए जाते हैं. ठीक है? तो 5539.
तो हम लोग ने क्या किया, 539 आपको दिया था तो 329 हट जाएगा और वहां पे आ जाएगा 539। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है कि रिप्लेसमेंट जो होगा वो यूं होगा, लेफ्ट वाले को बिट कहते हैं, राइट वाले को आस्क रेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा काम जो आपको करना है, रुपी और डॉलर का रेट हो गया, अब आपको कैनेडियन डॉलर और डॉलर का रेट दिया हुआ है, वो बता दीजिए क्या दिया हुआ है, उसको भी आउटराइट फॉर्म में हम लोग लिख लें। 5340 और डैश करके क्या लिखा था, 1.5798 1.5798, तो डैश करके 798 लिखा था, जिसको आपने आउटराइट फॉर्म में 1.5798 के रूप में लिख लिया। यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक है, तो सबसे पहले रेट जो होता है वो आउटराइट फॉर्म में लिखा रहता है, आपको यहां पे से 3 डिजिट्स वैल्यू रिप्लेस करनी है, पीछे से चालू करेंगे। अगर आखिरी में 3 डिजिट्स दिए तो आप आखिरी के 3 डिजिट्स रिप्लेस करोगे, 2 दिए तो आप आखिरी के 2 रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो ये हमारा आउटराइट रेट हो गया। अब हमने बोला जी आप इंपोर्टर के लिए रेट निकालिए, तो इंपोर्टर के लिए रेट निकालने के लिए हमको ये देखना है कि बिड रेट आएगा कि आस्क रेट आएगा, ये भी हमको आज पता लग जाएगा। तो इंपोर्टर के लिए रेट निकालना मतलब एक इंडियन जिसको कि रुपी कन्वर्ट करना है कैनेडियन डॉलर में, और उसको सहारा लेना पड़ रहा है किस चीज का, डॉलर का। तो डायरेक्टली नहीं करते हुए वो क्या करेगा, सबसे पहले डॉलर लेने जाएगा, डॉलर लेके फिर वो कैनेडियन डॉलर लेने जाएगा। ये क्रॉस रेट हो गया जी। तो सबसे पहले इंडियन आपके पास आएगा, आप लोग बैंक हो, बैंक कमाने के लिए बैठा है, वो रुपी देने को तैयार है और डॉलर लेना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, एक इंडियन इंपोर्टर विल ब्रिंग रुपीज टू गेट द डॉलर्स फ्रॉम यू। नाउ दिस इज द रेट which you have to use for conversion, right? Now suppose I am coming to you, sir, take rupees from me and give me dollars. So what rate will you charge? 5329 कि 5539? आप मेरे से ज्यादा पैसे लोगे कि कम पैसे लोगे? ज्यादा। आस्क रेट, वेरी आस्क सिंपल, रेट लगेगा। ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी मैं आपसे रुपीस लेके डॉलर लेने आऊं तो आप जो रेट कोट करोगे मुझे, वो मुझसे आप ज्यादा रुपए लोगे और मुझको फिर ही डॉलर दोगे, क्योंकि आप कमाने बैठे हो। तो आपने जो रेट मुझे कोट किया है वो है आस्क रेट 73.5539, इतने रुपए दे दीजिए तभी हम आपको डॉलर्स देंगे। सो दिस वुड बी द रेट विच यू आर गोइंग टू कोट टू मी, 73.5539। यहां तक सबको समझ में आ गया? इट इज सो सिंपल, राइट? Now again, I have dollars again and I need to take Canadian dollar from you. So I will be using the second step. Now second rate. जो rates मेरे सामने हैं वो है 1.5340 Canadian dollar and 1.5798 Canadian dollars to get into dollars. अब मैं आपको डॉलर्स दे रहा हूं और आपसे कैनेडियन डॉलर लूंगा। ध्यान से सुनो, मैं आपके पास डॉलर लेके आऊंगा और बोलूंगा साहब मुझे कैनेडियन डॉलर दे दीजिए, तो आप मेरे को 5340 कैनेडियन डॉलर दोगे कि 5798 कैनेडियन डॉलर दोगे? ज्यादा कैनेडियन डॉलर दोगे कि कम दोगे? कम देंगे सर। कम देंगे। वेरी गुड, क्योंकि आप मेरे पास यहाँ पे बिजनेस करने बैठे हो, आप कमाने बैठे हो। तो आपने जहां जिस तरीके से मुझसे ज्यादा रुपए चार्ज किए थे, उसी तरीके से जब आपको देने की बारी आई तो आप मुझे कम कैनेडियन डॉलर दोगे। $1 के बदले आप मुझे 1.5340 कैनेडियन डॉलर दोगे, ना कि ज्यादा वाले। तो ये दूसरा रेट आपने कोट किया। अब यहां से बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप सामने समझ में आ रहा है। ये भी $1 के बराबर रुपीस और ये $1 के बराबर कैनेडियन डॉलर। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं क्या? Canadian dollar 1.5340 is equivalent to $1, which was equivalent to rupees 73.5539. व्हीकल करेंसी ने अपना काम कर दिया, एक रिलेशनशिप पैदा कर दिया। और इस तरीके से अगर 1.5340 कैनेडियन डॉलर 73.5539 रुपीस के बराबर हैं, तो एक कैनेडियन डॉलर
कितने रुपए के बराबर होगा ये तो हम निकाल लेंगे। ये निकाल लीजिए साहब आप, 73.5539 डिवाइडेड बाय 1.5340 रुपीज। ये कैलकुलेशन करके मुझे बता दीजिए कितना हुआ। 47.9490. So happy everybody is doing that. एक एक करके बता दो प्लीज। 47.9490. 9490 rupees. This is the rate for importer. Is it clear up till यहां तक? ये चीज समझ में आ गई आपको? So the relationship between rupees and Canadian dollar for an importer is this much. Now let us again come to the exporter point of view. ये समझ में आ गया? इसको मिटा दे हम लोग। सर अभी मत मिटा दिए, एक मिनट। Alright, मैं मिटा रहा हूं। चलिए। Now let us talk about exporter. What exporter does? वो अपना सामान विदेश में बेचता है, और जब वो सामान अपना विदेश में बेचता है तो उसको फॉरेन करेंसी मिलती है, उसको कैनेडियन डॉलर मिला, बैंक के पास जाएगा, बैंक बोलेगा डॉलर लीजिए, डॉलर से फिर आप रुपीस में कन्वर्ट कराइएगा। तो ये उसको करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग ने अभी देखा। तो मान लीजिए आपके पास कैनेडियन डॉलर आ गए हैं, अब आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको बोलेगा पहले आप इधर आइए। इधर आइए, यहाँ पे जहां कैनेडियन डॉलर और डॉलर का रेट दिया गया है। तो आप कैनेडियन डॉलर लेके आएंगे और उनको बोलेंगे कि हमें डॉलर चाहिए। तो बैंक आपको बोलेगा कि डॉलर लेने के लिए आपको कितने कैनेडियन डॉलर देने पड़ेंगे। तो आप लोग बैंक हो, आप मुझे बताइए कि आप मुझे डॉलर बेच रहे हो और मैं आपको कैनेडियन डॉलर दे रहा हूं, तो इसमें से आप कौन सा रेट चार्ज करेंगे? कितने कैनेडियन डॉलर आप मुझसे चार्ज करेंगे ताकि आप मुझे डॉलर दे दें? 1.5340 कि 1.5798? आप कमाने बैठे हो? सर 5798 एवरीबडी अग्रीज टू दैट? आप लोग कमाने बैठे हो तो मुझसे आप ज्यादा कैनेडियन डॉलर चार्ज करोगे। So this much Canadian dollar, 1.5798 Canadian dollars, you are going to charge from me, और इसके बदले आप मुझे $1 देने को तैयार हो गए हो। वेरी गुड, मुझे $1 मिल गया। अब ये $1 लेके मैं ऊपर जाऊंगा और रुपीस और डॉलर के रिलेशनशिप में वापस आऊंगा। अब मैं आपको बोलता हूं साहब मुझसे डॉलर ले लो और मुझे रुपीस दे दो। दे दो। ज्यादा दोगे कि कम दोगे? कम सर। कम देंगे। कम देंगे। जहां देने की बारी आएगी वहां कम देंगे। अच्छी बात नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, लेकिन यही होता है। So when you charge dollar from me, you are going to pay me rupees, and the rupees you are going to pay me is kam wala 73.5329 rupees you're going to give me when I give you dollars. तो यहां से फिर हमारा दूसरा रिलेशनशिप सामने आ चुका है, और ये जो रिलेशनशिप हमारा सामने आया है वो है 1.5798 कैनेडियन डॉलर इज इक्विवेलेंट टू 73.15329 रुपीस। तो एक कैनेडियन डॉलर हो जाएगा किसके बराबर? 73.5329 रुपीस डिवाइडेड बाय 1.5798 कितना आता है? 46.5457 रुपीस। 46.54 हाँ जी 57 57। 7 वेरी गुड। सो एक्सपोर्टर के लिए जो रेट आया वो आया रुपीस 46.5457 पर कैनेडियन डॉलर। अब आपके सामने दो रेट हैं, बताइए कौन सा बिड रेट है और कौन सा आस्क रेट है? सर 46 वाला बिड रेट है और 47 वाला आस्क रेट है। Finally, the cross rate would be written as 46.5457 dash rupees 47.9490 rupees कैनेडियन डॉलर का रिलेशनशिप। ये जो रेट आया था ये एक्सपोर्टर के लिए आया था,
और ये जो रेट आया था ये इंपोर्टर के लिए आया था। इंपोर्टर वो व्यक्ति जिसको रुपए दे के फॉरेन करेंसी लेनी होती है, और एक्सपोर्टर वो व्यक्ति जो फॉरेन करेंसी दे के इंडियन करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी लेता